Welcome everyone to GeoScholars Academy. This is your first lecture in structural geology. First, before going to structural geology, you should know what is structure. What is the term structure? Simply, structure is a Latin word, okay, which means to build. Okay, to build. So anything that is built or constructed, that is structure. That may be artificial, that may be natural. So, for example of some artificial structure are building, which is made artificially, bridge, dam, etc. Artificial structure. And some natural structures are like fold, or your waterfall, etc. Okay, these are natural structure. Clear? That is structure. So then, since we are geologists, we are dealing with what? We are dealing with rock. Simply, we are dealing with rock. So simply, geological structure means the structure which is created in rocks is called geological structure, or created by rocks is geological structure. Just see some examples. Here is some folded rocks. The rocks become folded. So it will create a structure, that is a folded structure. Okay, folded structure. Here you can see the structure of rock. This is like some columns. Okay, it is called columnar structure, and it is the beds are like simply see the two beds are within that. Some beds are cross-cutting like this. This is called cross beds. So different type of structure. Examples of different type of structure: folded structure, columnar structure, pillow basalt, cross beds, etc. Okay, simply the geological structure are divided on the basis of origin. Geological structure is divided into two types. On the basis of what? Origin. On the basis of origin, geological structure are divided into two types. One is primary structure, and second one is secondary. Simple. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम लावा और ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट. वन इज डायरेक्टली फ्रॉम lava or during deposition of sediments. Okay, I will provide the notes. Okay, so see the what are primary structure? Those structure which are formed directly from lava or during the eruption of lava and or during the deposition of sediment. So those structure which form directly from lava are called igneous structure, and those which are formed during the deposition of sediment are called sedimentary structure. Simple. Okay. So, so if someone will ask you, give an example of primary structure, you can give all the structure that is related to igneous and all the structure that is related to sedimentary. Simple. Then coming to secondary structure. The secondary structure is those structure which are formed during the deformation of primary structure. Suppose primary structure कुछ होगा, suppose during the deposition ये एक बेड फॉर्म हो गया, तो कुछ deformation what? The force acting on it, during the force acting on it gets deformed, its shape changes, size changes, ठीक है, volume changes, so then it is deformed. तो उसके बाद क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, सब चेंज होगा, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा. तो डिफॉर्म होने के बाद सपोज ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये हो गया था, ये और प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज डिफॉर्म हो गया. सो all the structure related to deformation, that is all the secondary structure we are studied in structural geology. Simple. ठीक है. So primary structure are igneous and sedimentary structure, and the secondary structure are structural geology. We are studying all the secondary structure in structural geology, or we can say in structural geology we are studying about the structure which are formed during the deformation. Simple. Okay. Simple. ये मैंने रखा था ये क्वेश्चन, that is the difference between geological structure and structural geology. Geological structure includes igneous structure, sedimentary structure, and secondary structure, deformed structure. But structural geology includes only deformed structure. We can say the structural geology is a subset of geological structure. Simple. And simple now. Okay. Getting everyone? Okay. Moving forward. What does structural geology deals with? Simply structural geology deals with ये तीनों चीजें, like geometry, distribution and formation. यहीं पे structural geology खत्म होता है. अगर ये तीन चीजें एक स्ट्रक्चर का तीन चीजें तुम्हें पता कर लिया तुमने, तो तुम्हारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कंप्लीट हो गया.
ठीक है, ज्योमेट्री कैसे, हाउ टू डिटरमाइन ज्योमेट्री, इट्स शेप, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, क्या है, शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, शेप, स्ट्रक्चर का शेप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे एंड ओरिएंटेशन। तो ये तीनों पढ़ने के बाद हम स्टडी करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि इसका ज्योमेट्री कैसे होगा, ठीक है। और देन कम टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाउ स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वर्ल्ड, ओके, हाउ स्ट्रक्चर्स आर distributed over world. Simply, I am giving an example. Just think about your mid-Atlantic region. There it is, suppose it is a globe. There it is your mid-Atlantic. ठीक है ना, जो सेपरेट करता है किसको, साउथ अमेरिका को एंड अफ्रीका को, ठीक है ना। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक स्ट्रक्चरल फीचर है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मिड ओशियनिक, मिड अटलांटिक सी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वर्ल्ड वाइड है। So to define a structure, to know about a structure, we should know its distribution, how it is distributed all over world. That are the process acting on it. That is second thing. Okay. So everyone clear up to this distribution, geometry. Then coming to the formation, how structures form. Simply, how structures form. Simply, I am telling one thing. Since we are studying structural geology, so what our work is, we are getting these type of things, deformed object in our field. ठीक है, suppose you are going to field, you are seeing this type of thing, okay, डिफॉर्म ऑब्जेक्ट तुमने देखा स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट का काम क्या है, ये कहां से ऐसे हुआ, ये कैसे ऐसे हुआ, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इनिशियल पैरेंट कैसा था, पैरेंट स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, तो कौन सी स्टेजेस में देखे ये आया ताकि ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, what are the different type of force acted on it, and how due to this force how this structure behaves, this thing we have to study in structural geology। अगर ये तीनों चीजें हो गया ना, और लाइक मैंने जो बताया, और तुम्हारा ये जो हाउ दिस स्ट्रक्चर फॉर्म, its parents, how what was its parent structure and its distribution and geometry, अगर ये तीनों चीजें तुमने एक स्ट्रक्चर का पता कर लिया तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी खत्म हो गया तुम्हारे वहां पे, ठीक है। तो टू डिटरमाइन दिस वी नीड टू नो, we need to determine the kinematic analysis as well as dynamic analysis. So what is kinematic analysis? Kinematic analysis is simply, क्या है kinematic analysis तो बताएगा, simply kinematic analysis is we have to know the motion, okay, in kinematic analysis we have to know the, we have to determine the motion, in this we are worried about particle motion, in this we are worried about particle motion, how particle moves without knowing its cause of motion, कि कौन सा फोर्स पड़ा कि ये ऐसे डिफॉर्म हुआ, तो ये ना जान के बस, तो पार्टिकल जो डिफॉर्म हुआ कैसे डिफॉर्म हुआ, हाउ पार्टिकल डिफॉर्म, वी हैव टू नो इन काइनेमेटिक एनालिसिस, ओके। तो कैसे मोशन होते हैं, सिंपली फोर टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, वन इज ट्रांसलेशन, ओके, वन इज, जस्ट अ सेकंड, translation, one is rotation, third one is distortion, or we can say it's scale, the fourth one is dilation, dilation or contraction। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन सिंपली क्या है, the motion of particles in all the particles move in one direction, suppose this is a object particle and all the particles are present in, तो all ये भी यहाँ मूव करेगा, 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 ठीक है, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में विथ इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशन। एंड रोटेशन क्या है, सपोज सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है
तो विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, सपोज ये पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, बाहर वाला पार्टिकल से नहीं, तो अंदर वाला जितने भी पार्टिकल्स होंगे तो वो सेम डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कोई भी किसका ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस, किसका कम नहीं होगा, ठीक है, बस रोटेट होगा। इसमें क्या है एडिशनल अदर देन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में रोटेशन नहीं होता है, फिर रोटेशन में क्या होगा, पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, बट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर सॉरी वो सेम रहेंगे। Just look at your concept, drawing once again, उसका शेप चेंज नहीं होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन में, याद रखो, नो शेप चेंजेस, ठीक है। ये वैसे सपोज ये हमारा स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, ठीक है, और कुछ नहीं, पार्टिकल्स का विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, सपोज ये इधर आया तो ये जो पार्टिकल्स होगा ये भी इधर आया, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हो, और ये डिस्टेंस जो है ये इधर आ जाएगा, तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना हो, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसलेशन रोटेशन ये क्या है, शेप चेंज नहीं होता है, और ठीक है, और पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, और ये रिजिड बॉडी में दिखता है, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन में सिंपली ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आर सीन इन रिजिड बॉडी, लाइक फॉल्ट, थर्स्ट मैप में क्या होता है, जस्ट एक ब्लॉक मूव करके बहुत दूर बहुत किलोमीटर दूर चला जाता है, ऐसे रहता है, मतलब वैसे इधर रोटेशन होता है या फिर जस्ट सिंपली ट्रांसलेशन होता है, या ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है, ठीक है। ये थर्स्ट मैप इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन, सिंपल आ गया समझ में। देन कमिंग टू डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन, इन डिस्टोर्शन क्या होता है, शेप चेंजेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये जो बॉडी, तो यहाँ पे क्या होता है, शेप चेंजेस, सपोज ये रोम्बस हो जाता है, सपोज ये होगा तुम्हारा ये स्क्वायर, तो ये डिफॉर्मेशन होगा तो रोम्बस हो जाएगा, तो शेप चेंज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सपोज यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, चेंज में क्या होता है, शेप चेंजेस होता है, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिस्टोर्शन समझ में आ गया। और डायलेशन, तथा फोर्थ वन इज डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज और वॉल्यूम चेंज, ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चेंज कैसे, डायलेशन मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, तो डायलेशन मतलब कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, इन अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाएगा, सपोज ये वॉल्यूम है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ में आ गया। So can you give an where just where we can see this type of contraction in lithospheric phase? Suppose तुम्हारा 8 है, तुम 15 किलोमीटर नीचे आ जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक पार्टिकल होगा नहीं इधर हमारा, तो हमारे डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है लिथोस्फेरिक, लिथोस्टैटिक फेज। और डायलेशन का एग्जांपल लाइक बलून, टेक एन एग्जांपल ऑफ बलून, बलून को जब खुला हो गया तो ये डायलेशन होता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, ये कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। Then moving to next concept, your how to describe a geological structure, ठीक है, how to describe a geological structure, just a second, sorry, so I dynamic analysis also, there is a dynamic analysis, so you have dynamic analysis में क्या होता है, we are worried about the cause of motion, so what type of force or what type of stress, ठीक है, what type of force or stress acted on the structure so that this changes to this type of structure, ठीक है। और whether it may be compressive stress may be three types simply, one is compressive which acted towards each other,
One is extensional, which acted away from each other, and shear. ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म स्टेज को बोल सकते हो, स्लाइड पास्ट ईच अदर, shear स्टेज बोल सकते हो, स्लाइड सिंपली, ठीक है, ये तीनों टाइप का स्टेज है. So we have to determine which type of stress acted to a structure, so that it becomes to this. Okay. So just I give a brief idea about I gave a brief idea about your kinematic analysis and dynamic analysis and geometric analysis. We'll get in detail about these things. I have assigned kinematic analysis. I will complete kinematic analysis in two. It will take 2 classes, and dynamic analysis will maybe 3 classes or 4 classes. We have to study stress and more about stress and strain. Okay, nothing to worry about. This is a brief idea about what is kinematic analysis and what is dynamic analysis and what is geometric analysis. So, मैंने बताया पहले geometric analysis. ठीक है. तो ये तीनों को जब मिलाओगे इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्लस डायनामिक प्लस काइनेमेटिक एनालिसिस, तीनों को मिला के बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस. स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जीएसआई में, राइट अबाउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यू हैव टू राइट दिस. First you have to write geometric analysis, dynamic kinematic analysis and dynamic, just within one page. Okay, जो मैंने बताया अगर उतना भी लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा. तो 10 फिगर कर लोगे, स्ट्रेस का सिंबल देंगे, स्ट्रेस का भी कर लोगे, कंप्रेसिव, एक्सटेंशनल एंड शियर, एंड ज्योमेट्री में शेप, साइज, ओरिएंटेशन, उसका पूरा एक एक फिगर कर लोगे तो पूरा 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा. ठीक है, आई विल प्रोवाइड द नोट्स. ठीक है, don't worry about it in our telegram group. So what does we need to describe a geological structure? So to describe a geological structure we need to collect data. What type of data we need? So that is also depends upon your size of the structure. ठीक है, suppose you are what type of data I am telling, some data like your field data, that is deep and strike data. Okay, field data. Second one is remote sensing data. Third one is seismic data. Okay, so field data, suppose you are going to a field, you are seeing just you have to map a what? You have to map a fold. Simply ऐसे एक fold है, you have to map. एक छोटा सा fold है, you are going to field and तुम्हारा आई के अंदर दिख रहा है पूरा, within your vision of eye ये छोटा सा फोल्ड दिख रहा है. तो हमें क्या करना है? डीप स्ट्राइक मेजर करना है सारे पॉइंट में, तो उसके बाद मैप कर लेना है कि हाँ ये एक फोल्ड है. ठीक है, तो ये पॉइंट में डीप ले लिया, स्ट्राइक ले लिया, ये पॉइंट पे डीप स्ट्राइक, ओरिएंटेशन ले लिया, सारे पॉइंट में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऐसे मैंने ले लिया. तो उसके बाद जाके मैंने मैप कर लिया उसको कॉपी में कि हाँ ये एक फोल्ड है. ठीक है, तो ये फील्ड डाटा, तो तुम्हारे जो कितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट इन फील्ड दिखते, तो वो सब यूज करते हैं, फील्ड डाटा यूज करते हैं टू मैप दो स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर. बट सपोज you have to map a large regional structure, like you have to map a हिमालय. क्या तुम सारे जगह में हिमालय में जितने भी डीप स्ट्राइक ले पाओगे? इज इट पॉसिबल? नो ना, you cannot take deep and strike data or field data from each point of Himalaya, because सारे पॉइंट एक्सेसिबल नहीं है और इतने बड़ा जगह टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे टाइम लग जाएगा. तो दैट्स व्हाई व्हाट we take some aerial photograph of that region, that whole regional area. ठीक है, aerial photograph or remote sensing, we collect some remote sensing that then we analyze that. And some structure are present in subsurface, we cannot go access that, we cannot go directly to the subsurface. Suppose 10 किलोमीटर नीचे होगा, we cannot go to that point. So what we did seismic analysis of that region. तो seismic analysis में क्या होता है? सिंपली ये सॉफ्टवेयर है, तो तुम्हारा एक मशीन आएगा यहाँ पे, तो वो seismic वेव जनरेट करेगा ऐसे. ठीक है, seismic वेव जनरेट किया,
तो यहाँ पे तुम्हारा आठ आठ कुछ डिस्टेंस के बाद ये सपोज सोर्स हो गया तुम्हारा, कुछ डिस्टेंस के बाद ऐसे तुम्हारा जियो रिसीवर लगा देंगे, उसको बोलते हैं जियो फोन, रिसीवर को जियो फोन, तो रिसीवर लगा देंगे। सपोज तुम्हारे पास एक ऐसे एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर सब सरफेस में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज ऑफ इंपेडेंस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इंपेडेंस कॉन्ट्रास्ट क्या है, बस याद रख लो, इंपेडेंस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इंपेडेंस मतलब इंपेडेंस सिंपली होता है वेलोसिटी टू डेंसिटी। अगर ये सेismic वेलोसिटी, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम, क्योंकि एक बेड है, अलग मीडियम होगा, तो इसका जो वेलोसिटी है, जो सेismic वेव का वेलोसिटी, ये मीडियम के अंदर डिफरेंट होगा, ये मीडियम के अंदर डिफरेंट होगा, डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इंपेडेंस मिल जाएगा। तो अगर ये जगह का इंपेडेंस और ये जगह का इंपेडेंस भारी कर रहा है, तो सेismic वेव विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, तो ऐसे तो हमारे पास जितने भी रिसीवर है, तो हमें हमारे पास डाटा पॉइंट मिल जाएगा, तो उसके बाद हम उसको मैप कर देंगे, हाँ ये ठीक है, समझ में आ रहा है? You will get these things details in geophysics, okay? ठीक है, then ये हो गया how to describe the geological structure. To describe the geological structure, we need some data, this type of data, remote sensing data, field data, as well as seismic data. ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक ये होगा? So what are the structure? Then coming to structural feature. Simply structural, how many type of structural features? We are classified into three types. Okay, 1D structural feature, 2D structural feature, 3D structural. 1D structural feature, for example, the structural like line. Line is a 1D structural feature. Like for example, station. Station क्या है पता है? जैसे कि सपोज एक फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, तो जो नीचे वाला ब्लॉक होगा, तो ऊपर से तो सपोज नॉर्मल फॉल्टिंग हुआ है, तो ये वाला सपोज ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक, तो ये घिसटते होकर जब फॉल्टिंग होगा, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी, जब ये ड्रैग होकर नीचे आएगा, सो क्या होगा, ड्यूरिंग फॉल्टिंग क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रोड्यूस होते हैं, फॉल्ट प्लेन, तो वो फॉल्ट जो ब्लॉक्स भी ड्रैग होकर नीचे आएगा, तो ड्रैग होकर जब नीचे आएगा, तो क्या होगा, ऐसे लाइन बनाएगा, तो वो लाइन क्या हो गया, 1D फीचर हो गया, स्टेशन उसको बोलते हैं स्टेशन। 2D फीचर लाइक फॉल्ट प्लेन इटसेल्फ, फॉल्ट प्लेन इटसेल्फ 2D फीचर। 3D फीचर फॉल्ट प्लेन, ठीक है। 3D फीचर लाइक शियर जोन, एग्जांपल शियर जोन, फॉल्ट जोन, फोल्ड, फोल्ड है 3D फीचर, देखो, ठीक है। तो ये हो गया 1D 2D 3D। कैन यू टेल मी व्हाट इज 0D? कैन यू नेम इट, कैन यू टेल द नेम ऑफ ए 0D फीचर? यस, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, जो सही आंसर देगा मैं उसको कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है। जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ 0D फीचर, that is actually imaginary thing, that's why we are not classifying in structural feature, that is actually imaginary thing, just tell, okay, किस पॉइंट होगा, पॉइंट टाइप का होगा, तो टेल स्ट्रक्चरल वैल्यू व्हाट इज 0D फीचर। हो गया सबका क्लियर अभी तक? so this is actually up to this point, this is actually your introduction, simply introduction to structural geology। ये अभी तक तुम्हारा structural geology का introduction हो गया। then we will come to our scale part, okay, we will move to our scale। I hope you know everything, you know about scale, everyone you know about what is scale, okay? Just look at these questions, we are going to solve these questions, okay? Just try to solve, I am asking some question, you just pause now and उसका आंसर कमेंट में दो, ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आंसर कमेंट में दो। दिस इज क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर इन वर्ल्ड, इन द सरफेस, ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर इन वर्ल्ड, ठीक है, जस्ट आंसर इन कमेंट, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन इज, we will discuss everything, just you just answer in comment, okay, first, so that
मुझे लगा मुझे लगा कि तुम्हें पता है तुम्हें कुछ, ठीक है। विच प्लेट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, कौन सा प्लेट है जिसका वेलोसिटी, हमारा बहुत सारा प्लेट है ना, प्लेट के बारे में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, लाइक इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नास्का प्लेट एक्सेट्रा, ये सब पढ़ा होगा। तो उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी किसका है, ठीक है, और वह हम बताएंगे, ठीक है। यू जस्ट कमेंट व्हाट इज द प्लेट which has maximum, which plate has maximum velocity, and the third question is, ये मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। फोर नंबर क्वेश्चन इज आल्सो a descriptive type question, but the Himalaya is a perfect explain. I will explain everything. जस्ट ये बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कभी भी गेट या नेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू एग्जाम में भी आ सकता है। और द पोल ऑफ इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो है उसका पोल कहाँ पे है अभी, ठीक है। तो 6 नंबर जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। The final one question is, what is the maximum height after the earth is not considered as, ठीक है, flat, ठीक है। So guys, then moving to just analysis this question, I will explain everything, ठीक है। Okay, see, just one second, मैं पानी पी लेता हूँ। हमें देखो, कंटिन्यू, हमने डिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़े पहले से, अभी डिफॉर्मेशन कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो सो दैट क्या कर रहा है वो, और शेप साइज एक्सेट्रा चेंज कर रहा है, शेप साइज ओरिएंटेशन सबका चेंज कर रहा है तो स्ट्रक्चर का, तो वो हो गया डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कैन हैपन इन वेरी लिटिल स्केल, सपोज यू आर सीइंग थिन सेक्शन, ठीक है, थिन सेक्शन इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में थिन सेक्शन मेटामॉर्फिक होता है, तुम देख रहे हो, तो मेटामॉर्फिक होता है, तुमने देखोगे जैसे कि सपोज गामेट एक फाइब्रोब्लास्ट है, डीकाइनेमेटिक सॉरी सिनकाइनेमेटिक कंडीशन, तो गार्नेट कैसे होगा, ऐसे मूव करेगा, लेकिन गार्नेट ऐसे नहीं होता, तो डिफॉर्मेशन की वजह से वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो जाता है ड्यूरिंग सिनकाइनेमेटिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यू कैन सी सम elongated structure, anterior get elongated due to some shearing or stress activity. So deformation can, so I mean to say deformation can happen in smaller scale or microscopic scale. And just मैंने एग्जांपल दिया लास्ट और हिमालय का, ठीक है, हिमालय पूरा डिफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन हिमालय, बहुत लार्जर स्केल में, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या है, जस्ट अ सेकंड लेट मी राइट दिस। So deformation can happen in wider range as well as in maybe little microscopic scale. So, so for the ease of understanding of how deformation is happening, so we are divided into. So we need to study in scale. Okay. So we have four types of scale. ठीक है, तो क्या क्या है, वन इज प्लेट स्केल, जिसका स्केल है 10⁶मीटर और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सेकंड वन इज वेज स्केल, ठीक है, हिमालयन वेज, लाइक वेज स्केल सिंपली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर स्केल। थर्ड वन इज आउटवर्ड स्केल, दैट इज टेंस ऑफ किलोमीटर्स, एंड फाइनल वन इज हॉट जोन डिफॉर्मेशन स्केल ऑन, और तुम्हारा क्या, लेस देन 1 किलोमीटर स्केल। So today we will discuss up to this different, and in say next class we will discuss this. This is a very important. Okay. Lots of questions may come through this section. This section only. You have lots of questions can come from this section. In GATE या फिर your GSI लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें से, GSI, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये तीनों को देखेंगे। फर्स्ट प्लेट स्केल। प्लेट स्केल का स्केल क्या है मैंने बताया, हमारा प्लेट स्केल का स्केल क्या है, 10⁶ मीटर, 1:10⁶। आई होप यू गाइस नो अबाउट व्हाट इज स्केल। मैं बताया स्केल, ये जो है ये स्केल है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो स्केल वाइज हमने डिवाइड किए कि हाँ ये स्केल में, लास्ट स्केल में ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन दिस स्केल, डिफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन वेरी स्मॉल स्केल, माइक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं वेरी लार्ज स्केल, जो कि बोलते हैं उसको स्लेट स्केल। स्लेट स्केल क्यों बोल रहे हैं,
So in this case, what we are studying the motion of the plates. Okay, we are studying the motion of the plates. Just look, there are lots of plates. जैसे मैंने बताया, यूरोसियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ओके, साउथ अमेरिकन प्लेट, नाजका प्लेट, एक्सेट्रा. तो प्लेट्स आर मूव. ओके, सो प्लेट्स मूव करते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है ना. तो ये एक लार्ज स्केल का डिफॉर्मेशन है. ठीक है. तो मुझे कोई प्लेट तुम्हारा बहुत स्पीड में मोशन कर रहा है, कोई प्लेट बहुत स्लो मोशन कर रहा है. ठीक है. तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन. विच प्लेट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वाई. ठीक है. विच प्लेट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वाई. सिंपली द आंसर इज अफ्रीकन प्लेट, सॉरी, पैसिफिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी. क्यों, वाई मैंने बताया. देखो, जस्ट रिमेंबर, जो भी प्लेट है, अगर वो प्लेट तुम्हारा कॉन्टिनेंटल मास, अगर ज्यादा, अगर प्लेट का मास ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मोशन कैसे होगा, स्लो होगा. अगर प्लेट का मास कम होगा तो मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा. सिंपल बात. पैसिफिक प्लेट में क्या है तुम्हारा, पैसिफिक प्लेट पूरा होली ओशन कंटेंट करता है. ठीक है. ओशनिक प्लेट, इट इज अ होली ओशनिक प्लेट. और जितने भी सारे प्लेट है, कुछ प्लेट तुम्हारा बोथ, जितने भी सारे प्लेट है बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन कंटेंट करते हैं. दैट्स व्हाई दे, वो जब ड्रैग करते हैं इतना स्पीड में ड्रैग नहीं कर पाते. ठीक है. लेकिन पैसिफिक प्लेट बहुत स्पीड में ड्रैग करता है, क्योंकि वो सिर्फ ओशनिक प्लेट कंटेंट करता है. सिंपल बात हो गया. व्हिच प्लेट कंटेंट, ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. व्हिच प्लेट कंटेंट्स योर, व्हिच प्लेट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वाई. ठीक है. समझ में आ गया. पैसिफिक पैसिफिक सॉरी पैसिफिक. ठीक है. और मैंने को पूछा था which the largest geomorphic feature in your in earth, in the surface of earth, that is mid oceanic reef. MOR is the largest geomorphic feature in the surface. ठीक हो गया. और मैंने बताया, तो मैंने पूछा था what is the shape of, what is the shape of हिमालय. just look at here. हिमालय कैसे दिख रहा है. सिंपली आर्कवेट सब दिख रहा है ना हिमालय. ठीक है. ठीक है. हम जैसे कि हम ये प्लेट स्केल में दिख रहे हैं, लाइक 10⁶ स्केल में, तो हिमालय कैसे दिख रहा है, पूरा आर्कवेट सब दिख रहा है. ठीक है. तो अगर मैं पूछेगा कोई व्हाट इज द शेप ऑफ हिमालय, तो कैसा होगा. इफ यू आर सीइंग इन प्लान व्यू at which scale, plate scale, it is your arcuate shape. ठीक. Then second, moving to scales of deformation, second thing is weight scale. Weight scale. ठीक है. The scale is 10⁵ meter. So in this scale we are studying about different types of demo. We are studying your Miocenic ridge features, your हिमालय का जितने भी तुम्हारे फीचर्स है, छोटा छोटा फीचर वो भी दिखता है. बाउंड्री के प्लेट बाउंड्री, और इसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री स्केल. और प्लेट बाउंड्री में जितने भी सारा फीचर है ये दिखता है, वो सब एनालिसिस होता है वेट स्केल. और बोलते हैं क्या, प्लेट बाउंड्री. तो देखो ये क्या है, जस्ट आई एम गिविंग दिस. ये एक मीडोसेनिक रिज है. मीडोसेनिक रिज में ये जो फीचर दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. ये क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. देखो, ये अगर तुम बहुत क्लोजली दिखोगे, सपोज ये 800 पे से क्लोजली दिखोगे, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखेगा. ठीक है. अगर तुम बहुत ऊपर जाओगे, लाइक 10⁵ स्केल और उससे भी ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, तो यू नो अर्थ इज नॉट स्फीयर, सो एवरीथिंग विल बी फॉर getting what I'm trying to say. So earth is pure, everything will be for, if we are going to top and seeing this picture. So this picture, this transform fault will look like this, and we will see in large scale this. So ऐसे क्या होता है, जितने भी सारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, सपोज ये तुम्हारा प्लेट बाउंड्री है, इसमें जितने भी सारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है उसका ऐसे दिखेगा. ठीक है. ऐसे
इससे दिखेगा, इससे दिस टाइप। तो उसके बाद क्या होता है, तो दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज कॉल्ड दिस पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं, उसका पोल। तो जब एक और हो जाएगा, इसका सेंट्रल पॉइंट से परपेंडिकुलर टानेंगे, खींचेंगे, ये इसका पोल हो गया, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, इससे भी लाइन टानेंगे परपेंडिकुलर, ये भी पोल हो गया। ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का, ये भी पोल हो गया, ये भी इसका पोल हो गया। जो पॉइंट में मीट करेंगे उसको बोलते हैं पोल, पोल ऑफ दैट प्लेट, पोल ऑफ दैट सिंपली, ठीक है। तो प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जब हम ऊपर जाएंगे, बहुत लार्जर स्केल में दिखेंगे, तो वो कर्व हो जाता है। तो कर्व जब होता है, हो जाता है, तो हम पोल खींचते हैं। जब पोल खींचते हैं, तो वो जाके जब सारे पोल एक पॉइंट में मीट हो जाते हैं, ये मैंडेटरी है कि सारे पोल एक पॉइंट में मीट होता है। तो जब मीट होता है, वो एक परफेक्ट फिक्स पोल देता है। जब वो फिक्स पोल होता है, हम बोलते हैं द पोल ऑफ द होल प्लेट। सपोज देयर इज इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट का बाउंड्री में ऐसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा, तो उसका पोल खींचेंगे, जब एक पॉइंट में मीट करेगा, वो पॉइंट होता है हमारा क्या, हमारा पोल ऑफ द इंडियन प्लेट, ठीक है। तो मैंने पूछा था इंडियन प्लेट का पोल कहाँ पे है, कहाँ पे है, इट इज इन समवेयर इन मेडिटेरेनियन सी, क्लोज टू अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी, क्लोज टू अफ्रीका, ठीक है। अभी इंडियन प्लेट का पोल कहाँ पे है, यहाँ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबको समझ में आ गया। देन मूविंग टू, देन कमिंग टू हिमालय। तो मैंने बताया था हिमालय का शेप कैसा है, एक्यूएट है। वो तब कौन सी स्केल में देखे थे, बताओ। हम प्लेट स्केल में देखे थे, ठीक है। तो जब मैंने प्लेट बाउंड्री स्केल में देखेंगे या फिर वेट स्केल में देखेंगे, तो प्लेट बाउंड्री अच्छे से दिखेगा, दैट इज 110 to the 5 मीटर स्केल। तो प्लेट बाउंड्री क्या होगा, अच्छे से दिखेगा। तो हमने देखे हिमालय, वो वहां पे पूरा परफेक्ट आर्ट था, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, कैसे हो गया, लाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कैसे हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स पार्ट है, कॉन्वेक्स अपवर्ड है, उसको बोलते हैं क्या, रिसेसेस। इसको रिसेसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं सनलाइट, ठीक है। जो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है उसको बोलते हैं सनलाइट, जो कॉन्वेक्स अपवर्ड है उसको बोलते हैं रिसेसेस। तो ये टू इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हें व्हाट इज द शेप ऑफ हिमालय, तो शेप ऑफ हिमालय कैसा है, शेप ऑफ हिमालय, ये सपोज कोई पूछेगा, सपोज द क्वेश्चन इज द शेप ऑफ हिमालय इज ए परफेक्ट आर्क, हिमालय इज ए परफेक्ट आर्क, ट्रू और false, you can write Himalaya is a perfect or false, because if you are seeing in plate scale, it will look like a perfect arc, but when we come to plate scale or plate boundary scale, the arc will become like this, okay. So it is not a, we will see sunlight and recesses, so it is not a perfect, not a perfect arc, ठीक है। सबको समझ में आ गया, हिमालय जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, हिमालय इज ए परफेक्ट आर्क, ट्रू और फॉल्स, सबको समझ में आ गया। दिस इट इज ऑन व्हिच स्केल वी आर लुकिंग एट, जो भी, अगर तुम प्लेट स्केल में दिख रहे हो तो ये परफेक्ट आर्क है, अगर वेट स्केल में दिख रहे हो तो ये परफेक्ट आर्क नहीं है, ये वी कैन सी सनलाइट रिसेसेस। और एक बार, तो मेरा जो क्वेश्चन था, हिमालय इज ए, व्हाट इज द शेप ऑफ हिमालय, मैंने बताया तुम्हें, शेप ऑफ हिमालय इज earthquake or slightly earthquake type. So we are seeing sunlight and recesses picture. On which view we are looking at? If we are looking at plan view, it will be earthquake. But when we are looking at cross sectional view, the Himalaya will look like a perfect wedge. ठीक है, perfect wedge shape, ठीक है ना। Simply understand, in plate wedge scale we are studying about plate boundary features, ठीक है। तो ये सब हिमालय जो है वो तुम्हारा इंडियन यूरेशियन प्लेट के बीच में है, तो इसीलिए हम प्लेट बाउंड्री स्केल में या वेट स्केल में ये सब स्टडी करते हैं। जितने भी तुम्हारा मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट है,
हमारा, ठीक है, साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट है हमारा, वो इंडस सांकोस फ्यूचर जोन है, वो सब स्टडी करते हैं इन वेज स्केल या प्लेट बाउंड्री स्केल। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जैसे मैंने बताया, ये भी हम स्टडी करते हैं प्लेट बाउंड्री स्केल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इफ यू हैव डाउट you can ask me in Telegram or you can ask me in YouTube comment. Okay. I will upload this video in YouTube, so you guys just comment. If you have any doubt, you just comment. Okay. Then coming to the third part, is outcrop scale. Outcrop scale. Typically, the scale is in this what we study. We studied about sweep and propagation rate of fault. ठीक है, तो आउटक्रॉप स्केल का स्केल कितना है? 10 किलोमीटर या 10 टू द 4। ठीक है, समझ में आ गया? जस्ट जस्ट मैंने पूछा था तुम्हें, ये क्वेश्चन पूछा था वहां पे। देखो आउटक्रॉप स्केल क्या होते हैं? स्लीप एंड सेपरेशन, स्लीप रेट्स, ये सब स्टडी करते हैं फॉल्ट। ठीक, तो मैंने जो पूछा था तुम्हें क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ 2% लोगों ने सही किया था। एक प्रोफेसर बनाया था IIT बॉम्बे का, इसका आंसर 2% लोगों ने सही किया था। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द क्रॉस सेक्शन बिलो शोज थ्रस्ट फॉल्ट विथ एसोसिएटेड फॉल्ट रिलेटेड फॉल्ट on the hanging wall, which one is the combination? Simply I am telling what is hanging wall, what is sweep wall. Suppose it is a fault. Suppose you are fault. If suppose you are standing in a fault, ठीक है, जब you are standing in a fault, तुम्हारा पैदल, तुम्हारा पैर, ठीक है, तुम्हारा पैर जहां पे रहेगा वो हो गया तुम्हारा स्वीपर, वो ब्लॉक हो गया स्वीपर। ठीक है, और द ऑपोजिट ब्लॉक इज हैंगिंग वॉल। सिंपली सपोज ये फॉल्ट है, तो फॉल्ट का नीचे वाला ब्लॉक क्या होगा? स्वीपर, ऊपर वाला ब्लॉक हैंगिंग वॉल हो गया। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, so before that I am saying some concept of your ramp and flat. I'm going to some concept of ramp and flat. What is ramp and what is flat? Three basically defined by cutoff angle. Simply cutoff angle. Suppose तुम्हारा फॉल्ट प्लेन यहाँ पे है, फॉल्ट प्लेन और बेडिंग प्लेन, फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट प्लेन बेडिंग प्लेन के बीच में, फॉल्ट प्लेन और बेडिंग प्लेन के बीच में एंगल अगर 10 डिग्री से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लैट, अगर 10 डिग्री से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे फ्लैट। सो कट ऑफ एंगल इज 10 डिग्री। तो जस्ट लुक एट दिस फिगर, मैंने बता दिया। ये फॉल्ट प्लेन कहाँ पे है? ये तुम्हारा फॉल्ट प्लेन है। ठीक है, ये तुम्हारा फॉल्ट प्लेन है। तो फॉल्ट प्लेन में क्या है? ये बेडिंग है, ये तुम्हारा बेडिंग है। ठीक है, तो बताओ ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट मतलब ये बेडिंग पॉइंट, ये बेडिंग, तो ये बेडिंग फॉल्ट प्लेन के साथ पैरेलल है कि नहीं? जब 10 डिग्री से लेस देन 10 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पी को क्या बोलेंगे? सिंपली फ्लैट। देखो क्यू पॉइंट का बेडिंग ये है, ये फॉल्ट प्लेन है, तो इसका एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होगा, दिख रहा है, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रैंप हो जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये हो गया पी पॉइंट, क्या हो गया? फ्लैट। पी पॉइंट फ्लैट हो गया, क्यू पॉइंट क्या हो गया? रैंप हो गया, दोनों ऑप्शन में। तो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज फॉल्ट बेंट फोल्ड और व्हाट इज फॉल्ट प्रोपेगेशन फोल्ड। सिंपली डेफिनेशन है सिंपली फॉल्ट प्रोपेगेशन फोल्ड। देखो ये एक बेडिंग तुम्हारा हो गया पूरा, इसमें पूरा बेडिंग है। ठीक है, तो बेडिंग में क्या है? हमारा ये फॉल्ट है, जस्ट फॉल्ट इनिशिएशन हुआ। तो फॉल्ट जब इनिशिएशन हुआ, इसका जो टॉप पार्ट है फॉल्ट का उसको बोलते हैं टी। सपोज ऐसे फॉल्ट है, तो ये टॉप पार्ट बोलते हैं टी। तो आज डिफॉर्मेशन ग्रोथ, डिफॉर्मेशन पड़ रहा है, तो ये फॉल्ट प्लेन का फॉल्ट टिप क्या होगा? ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। डिफॉर्मेशन पड़ रहा है उसके ऊपर, तो ये धीरे धीरे ग्रो होगा। तो धीरे धीरे जब ग्रो होगा, ये ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर जो ब्लॉक था, हैंगिंग वॉल का जो ब्लॉक था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा, फोल्डेड हो जाएगा। ठीक है, आज
the fault tip grows, the hanging wall becomes folded. So that is called fold propagation fault. A simple language you can say, when fault tip propagates into the hanging wall, ठीक है, when fault tip moves towards or grows towards the hanging wall, causing the rocks above the fault become folded. That is fault propagation. ठीक है. In fault propagation fault, the yeah, okay, ठीक है, fault propagation fault है. Then fault bend fault. What is fault bend fault? Fault bend fault क्या है? Simply the fault becomes bent, and the upper part upper rocks that is present above the fault becomes bent and with a folded structure. देखो, ये एक fault था तुम्हारा, ये fault क्या हो गया? Bent हो गया, bent हुआ, bent हुआ. So slip goes on, slip is going on, तो slip चल रहा है, तो ये bearing क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. तो क्या होगा? ये जो पॉइंट था तुम्हारा, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगा, ये लाइन जो था ये यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? स्लीप होगा तो फॉल्ट, जो बेंड हुआ था फोल्ड, उसके ऊपर जितने भी रॉक्स है वो भी बेंड होकर फोल्ड दे देंगे, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट बेंड फोल्ड. जस्ट एक फ्री आइडिया. ओके, ये सब फ्री आइडिया है, जब फोल्ड पढ़ाऊंगा मैं तो तब ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनता है. ठीक है, जस्ट एक फ्री आइडिया. दैट इज फॉल्ट बेंड फोल्ड और व्हाट इज फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड. इन फॉल्ट बेंड फोल्ड द फॉल्ट बिकम्स बेंड. ठीक है, फॉल्ट क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. लेकिन फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड में फॉल्ट बेंड नहीं होता है. क्या होता है इसमें? फॉल्ट का जो टिप है फॉल्ट ग्रो करता है. इन फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड फॉल्ट प्रोपगेट करता है, और क्या करता है? जितना भी रॉक्स ऊपर है वो फोल्डेड हो जाता है. ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे क्या है? ये तुम्हारा फॉल्ट जो है बेंड हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट बेंड. ठीक है, फॉल्ट बेंड. समझ में आ गया सबको? तो आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. तो ये जो स्लीप करता है, मैंने जो बोला, ये स्लीप जो करता है, ये स्लीप करता है जैसे कि दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर. जब स्लीप करता है तुम्हारा, ये जो ब्लॉक्स रॉक्स स्लीप करता है, तो ये जो पॉइंट था ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये जो पॉइंट था ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट फिर से इधर आ जाएगा. ठीक है, तो वो जो स्लीप को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टडी करते हैं इन व्हिच स्केल? योर आउट ऑफ स्केल. ठीक है, समझ में आ गया सबको तक? और क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? मैं देख लेता हूँ, भूल गया हूँ. ये बता दिया, लार्जेस्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर इन द वर्ल्ड तुम्हारा हो गया मिड अटलांटिक रीज. ये भी बता दिया, पैसिफिक प्लेट, शेप ऑफ हिमालय, ये भी बता दिया शेप ऑफ हिमालय. तो व्हाट इज द शेप ऑफ हिमालय? शेप ऑफ हिमालय इज in basis on which way you are looking. If cross section it equals, if in our view it is earthquake. In our view, if we are seeing in weight scale, sorry, plate scale, it is perfect arc. If we are seeing in weight scale, it is not perfect arc. Salient, this is the picture. ठीक है, और एक चीज है, मैं 7 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ. What is the maximum height after that Earth is not considered as flat? Just remember the cutoff height is 15 kilometers. Above that, everything looks और. ठीक है, ये तुम्हारा बता रहा था ना, तुम्हारा वो था ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था. ठीक है, तो वो क्या होता है? 15 किलोमीटर ऊपर जब जाओगे तो वो ऐसे दिखेगा. ठीक है, समझ में आ गया सबको? मतलब तो नेक्स्ट क्लास we will study about this last one, that is fault zone deformation. ठीक है, and we will discuss these two questions. What is the how to distinguish between fault zone and shear zone in field, and can you the second question is, can you get fault in brittle deformation zone? If you know this answer of this question, you can comment down. Okay, if अगर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ओके, इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. मैं सारे भी जितने भी सारा पढ़ाया उसका नोट्स सब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा. अगर कोई दिक्कत, अगर कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ओके, और इन यूट्यूब चैनल यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन. ओके, तो हम रखते हैं यहाँ पे. थैंक यू. ठीक है.